12 جون کو لندن میں ہونے والے کشمیر کے حوالے سے مظاہرے کے لیے برطانیہ میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانی یک زبان ہو گئے۔ لوٹن میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے ہونے والے مظاہرے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی منشور اختلافات سے بالاتر ہو کر مظاہرے میں شرکت کریں۔ دیکھتے ہیں لوٹن سے چودھری نثار گلشن کی یہ رپورٹ۔ لیوٹن میں تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما یاسین ملک کو ہندوستانی عدالت سے دی جانے والی سزا کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرے کا اعلان کیا۔ سیاسی رہنماؤں نے مظاہرے میں شرکت کے لیے پاکستانیوں اور کشمیریوں کو 12 جون کو برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج میں شریک ہونے کی کال بھی دی۔ میں پورے برطانیہ باد سے لوگوں سے یہ گزارش کروں کہ آپ باہر نکلیں۔ 12 جون کو پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے وہاں بیٹھے ہونا ہے، اس کے بعد ہم نے واک کر کے ہندوستان ہائی کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا کہ ہندوستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور حریت رہنما یاسین ملک کی سزا کے خلاف تمام سیاسی اور سماجی تنظیمیں زور و شور کے ساتھ مظاہرے میں حصہ لیں۔ ایک تو یاسین ملک کو جو سزا سنائی دی گئی ہے وہ کالا قانون ہے، اس کی ہم پر زور مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز صلالت پر جو گستاخی کی ہے اس کے اوپر ہم پوری مذمت کرتے ہیں، اور میں پورے مسلمان امت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس میں بھرپور حصہ لیں اور باہر نکلیں بچوں کے ساتھ۔ یہ جو مظاہرہ اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ سیاسی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں احتجاج کے لاہے عمل کا بھی اعلان کیا۔ برطانیہ بھر سے لوگ برطانوی پارلیمنٹ اور ہندوستانی ہائی کمیشن لندن میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ اس موقع پر مظاہرین ہندوستانی سیاست کے مکروہ چہرے اور اوچھے ہتھکنڈوں کو بھی بے نقاب کریں گے۔ پریس کانفرنس میں ظفر قریشی، صابر، تحسین گیلانی، پروفیسر مسعود ہزاروی، ریاض بٹ، شبیر ملک، چودھری شفاعت، چودھری قربان، ملک پنو، چودھری شریف کے علاوہ دیگر سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ چودھری نثار گلشن، 92 نیوز، لیوٹن۔ برطانوی ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل کے اسائلم سیکرز کو روانڈا منتقل کرنے کے قانون کو دھچکا۔ عدالت میں اسائلم سیکرز کے روانڈا بھیجنے کے عمل کو مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں اور امیگرینٹس کی فلاح کے لیے کام کرنے والے تنظیموں نے چیلنج کر رکھا ہے۔ 14 جون کو جانے والی پہلی فلائٹ روکے جانے کا امکان ہے۔ اس پر ماہر امیگریشن قوانین بیرسٹر جہانزیب سرور نے بیورو چیف UK غلام حسین امان سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ لندن میں بیرسٹر جہانزیب سرور صاحب موجود ہیں جو کہ امیگریشن کے ماہر ہیں، یہاں پر امیگریشن قوانین کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو برطانیہ کے اندر امیگریشن قوانین کے اندر تبدیلی آ رہی ہیں، اور اسپیشلی یہ جو اب کام کیا گیا ہے ہوم آفس کی طرف سے کہ جو اسائلم سیکرز آئیں گی ان کو روانڈا بھیجا جائے گا، اس کو کس طرح لیا جا رہا ہے؟ جی شکریہ، وہ بالکل غلط ہے نا، وہ میرے خیال میں وہ بریچ کرتا ہے انٹرنیشنل لا، اس میں پریکٹیکل نہیں ہے، اس میں کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے، اینڈ آلسو اٹس ناٹ ورکیبل۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ لو کہ جو جا رہے ہیں ہوائی جہاز میں، اس میں بہت لو پرسنٹیج ہے وہ جو جا رہے ہیں، مے بی 7 or 8 out of 100، 7 and 8 out of 100، اس میں خرچہ کتنا بن جاتا ہے ٹیکس پیئر کو، مے بی about 28,000 30,000۔ اٹس ویری شاکنگ یہ چیز میں کہ اس میں کوئی پریکٹیکلٹی بھی نہیں ہے، اس میں جو موسٹ ولنریبل ہے جو ملک میں آ رہے ہیں اس میں کوئی کمپیشن نہیں شو کر رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ عدالت کے اندر چیلنج کیا گیا کچھ تنظیموں کی طرف سے، ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے۔ جی بالکل، اس میں میجورٹی آف دیز کیسز آر گیٹنگ چیلنجڈ in the courts on the basis کیا ہے breaches of international law۔ اس میں زیادہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے آرٹیکل 3، breach of article 3، breach of article 8۔ سر دوسرا یہ پرائیویٹ لائف کے اندر کہہ رہے تھے کچھ قوانین کے اندر نیکسٹ منتھ کے اندر چینجز آ رہی ہیں، وہ کیا چینجز ہیں؟ یہ پرائیویٹ لائف میں یہ دیکھ لو کہ 20 ایئر روٹ میں کوئی آ جانا ہے کس کو گرانٹ ہو جائے پرائیویٹ لائف، سوری 10 ایئر روٹ میں۔ اس میں کیٹیگریز ہے، ایج کیٹیگریز۔ سو اف فار ایگزامپل اف آپ کی عمر ہے 25 اینڈ اوور، اف آپ کو آپ کے لیے پرائیویٹ لائف گرانٹ ہو جائے، وہ 20 سال بعد آپ نے شو کیا ہے کہ میں یہاں لیگل رہ رہا ہوں، پھر آپ کو پرائیویٹ لائف میں گرانٹ ہو جائے 10 ایئر روٹ سیٹلمنٹ میں۔ اف آپ کی عمر ہے 18 سال انڈر، اس میں آپ دیکھ لو کہ آپ نے پروو کرنا کہ 7 ایئر آپ نے یہ ملک میں رہے ہیں، پھر آپ کو گرانٹ ہو سکتا ہے پرائیویٹ لائف میں 10 ایئر روٹ۔ سو 10 ایئر روٹ کا مطلب یہ ہے کہ 10 ایئر روٹ میں بعد پہ آپ سیٹلمنٹ
लिए अप्लाई कर सकते हैं। So जो न्यू प्रोविजंस आ रहे हैं ये आ रहे हैं 20 जून नेक्स्ट मंथ के, उसकी कैटेगरीज है 18 to 25। ये देख रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ आपको 10 साल बाद आपको ग्रांट हो इंडेफिनिट, आपको 5 साल में ग्रांट हो सकता है इंडेफिनिट, और आपको कंटिन्यूस वीज़ा भी मिल सकता है। सो ये नहीं है कि आपके 2-2.5 साल बाद आपने फिर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। आप उसको पूछ सकते हैं मैं को मुझको 5 साल का वीज़ा दे दो, तो उसके बाद आपका खर्चा बच जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कहेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड हैं, वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कोई ना कोई एमएनएसटी आ रही है। अगर एमएनएसटी नहीं आती तो लोगों को क्या करना चाहिए? कि अपने केसेस जमा कराने चाहिए, किसी लॉयर से मशवरा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जो भी यहाँ लीगल है उसमें अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स है वो एडवाइस लेनी चाहिए, कोई अच्छी सॉलिसिटर हो जो भी है। हम ये एडवाइस दे सकते हैं कि उसमें पूरा सर्कमस्टांसेस देखें कि क्या उसकी सर्कमस्टांसेस है, उसमें फैमिली सर्कमस्टांसेस, उसकी हेल्थ सर्कमस्टांसेस, उसकी जो प्राइवेट लाइफ की सर्कमस्टांसेस है, सब कुछ कंप्लीट पिक्चर उसको उठा के वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि बेस्ट क्या तरीका है यूके में। आयरलैंड में बगैर कागजात के गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद के लिए इमिग्रेशन कवानीन में नरमी की गई है और उन्हें कानूनी दायरे में लाने के लिए एक स्कीम मुतारिफ करवाई गई। ताहम लोगों को इल्म न होने की वजह से दरखास्तों की तादाद अभी बहुत कम है। तलबा समेत दीगर अफराद इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी सफारत खाने के ताउन से 15 तारीख को एक मालूमाती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जा रहा है। मजीद मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा मौजूद हैं सिल्वेस्टर इम्तियाज खान के साथ। जी फैसल, बताएगा उनका क्या कहना है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं IM के सोलिसिटर्स के प्रिंसिपल सोलिसिटर इम्तियाज खान के साथ। आयरलैंड में इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड स्कीम के ऊपर एक नई बहस शुरू हो गई है कि केसेस बहुत कम जो हैं वो फाइल किए गए हैं। इस हवाले से और अनडॉक्यूमेंटेड स्कीम के जो नेक्स्ट लेवल है उस बारे में इनसे इनकी राय लेते हैं। इम्तियाज, वेलकम टू 92 न्यूज़। बताइएगा अनडॉक्यूमेंटेड स्कीम किस लेवल पे जा रही है? फैसल, बहुत शुक्रिया। अभी तक जो गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक के हिसाब से बहुत कम एप्लीकेशन आए, जो एंटिसिपेट हो रहे थे वो 17,000 to 20,000 थे, और अभी तक जो स्टेटिस्टिक पता चले गवर्नमेंट से कि अभी तक सिर्फ 6 से 7,000 एप्लीकेशन आए। तो हम स्ट्रांगली इनकरेज कर रहे हैं सारे वो लोग जो इधर अनडॉक्यूमेंटेड रह रहे हैं, जो उनके कोई टाइप का टेम्परी परमिशन हो, रिवोक हुआ हो या पिछला उनका कोई भी रिवोकेशन हुआ हो, जिस किस्म का भी बैकग्राउंड हो, हमको इनकरेज कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन ASAP डाल ले। बहुत अच्छा स्कीम है। हमने काफ़ी लीनियंसी नोट की, इसमें हमारे काफ़ी क्लाइंट के काम हुए जिनका काफ़ी रफ बैकग्राउंड था और उनको परमिशन मिले इस स्कीम के नीचे। तो हम सबको अर्ज कर रहे हैं कम्युनिटी मेंबर को कि इस मौके को, अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना होने दे और आगे आ जाए। ये जो 15 तारीख को MRCI के साथ पाकिस्तान एम्बेसी करने जा रही है एक इवेंट, वो उसके बारे में कुछ अपडेट? ये पाकिस्तानी एम्बेसी का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का काविश है कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो आयरलैंड में मुकीम है उनके लिए इंफॉर्मेटिव एक सेशन ला रही है कि आप किस तरह एप्लीकेशन कर सकते हैं और किस तरह के लोग इसमें इंक्लूड होंगे इस स्कीम में। तो MRCI ने हमेशा बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव रोल अदा किया इमिग्रेंट्स राइट के लिए आयरलैंड में। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है और जितने भी लोग इसको आप अटेंड करें कि लोगों को पता लग जाए कि उनके राइट्स क्या है इधर इमिग्रेशन के हवाले से और वो किस तरह एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे जो एक कैंपेन रन कर रहे हैं या जो लॉन्ग टर्म से यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बारे में कुछ? एक चीज़ मैंने नोट की है पर्सनली कि काफ़ी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी से, मगर अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं आ रहे। वो सिर्फ कैंपेन चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर कि हमें इंसाफ दिया जाए, मगर वो इंसाफ सीख नहीं कर रहे। तो जब तक इफ़ यू डोंट सीक जस्टिस यू नेवर गेट जस्टिस। तो मैं सबको इनकरेज करता हूँ कि हमारे साथ वो कॉन्टेक्ट कर ले। हमने रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट जो इधर इलीगल हुए थे, जो 2 साल से या 3 साल से इलीगल थे, 4 साल से कम थे इलीगल, उनके हमने काम करवाए। तो मैं सबको इनकरेज करता हूँ कि वो आगे आ जाए, सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप पर जस्टिस सीख ना करें बल्कि प्रैक्टिकली आप जस्टिस सीख करें। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे किसी परमिशन के लिए, मिनिस्टर ने खुद आपको आकर घर में परमिशन नहीं देना, आपने अप्लाई करना होगा और फिर मिनिस्टर ने ऑफकोर्स वो कंसिडर करते हैं एप्लीकेशन। जी, इम्तियाज का कहना है कि यहाँ आयरलैंड में इस वक्त बड़े पॉजिटिव किस्म का एक रुझान है इमिग्रेशन के हवाले से। तो जो लोग भी समझते हैं कि उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है इमिग्रेशन के हवाले से या उन्हें कुछ नेक्स्ट लेवल की कुछ चीज़ चाहिए ऐसी अपना स्टेटस बहाल करने के लिए, दे शुड अप्लाई, तो उन्हें सामने आना चाहिए। जी, आयरलैंड में मशहूर पंजाबी सिंगर डॉक्टर सतिंदर सरताज ने अपने खूबसूरत पंजाबी गीतों से पंजाबी कम्युनिटी को झूमने पर मजबूर कर दिया। डबलिन में होने वाले शो में बड़ी तादाद में लोगों ने फैमिलीज के साथ शिरकत की और एक भरपूर शाम गुजारी।
मंचलों ने डॉक्टर सतिंदर सरताज के गीतों पर भंगड़े डालकर दाद दी। देखिए फैसल मिर्जा की ये रिपोर्ट। आइलैंड में मुकीम पंजाबी और खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए इंटरटेनमेंट से भरपूर शो का बंदोबस्त किया गया, जिसमें पंजाबी गायक डॉक्टर सतिंदर सरताज ने अपने खूबसूरत गीतों और सुरीली आवाज से शायकीन से खूब दाद वसूल की। रंगारंग कंसर्ट डबलिन के कम्युनिटी सेंटर में मुनक्कद किया गया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह थी, जो शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। प्रोग्राम में पाकिस्तानी गुलकारा शफक अली की परफॉर्मेंस पर भी शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके और उनकी आयरलैंड में पहली बाकायदा एंट्री पर शायकीन ने मुबारकबाद भी पेश की। सतिंदर सरताज ने अपने तमाम मशहूर गीतों के साथ साथ अपनी शायरी और मशहूर सूफी गीतों का इंतखाब करके इस्तेमाल बांध दिया। इस मौके पर उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान प्यार और मोहब्बत का पैगाम भी दिया। शायकीन ने इस तरह के बेहतरीन इंतजामात और फैमिली इवेंट को ऑर्गेनाइज करने पर GK एंटरटेनमेंट को भरपूर मुबारकबाद पेश की और फनकारों की परफॉर्मेंस को सराहा। 92 न्यूज से बातचीत करते हुए शायकीन ने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के इवेंट्स आइलैंड में बाकायदगी के साथ होते रहेंगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सुन के बड़ा मजा आया जी। इस बार पंजाबी इवेंट हुआ है डबलिन में, जिसने बहुत हमें मोटिवेट किया पंजाबी कल्चर के बारे में और चढ़ते पंजाब के बारे में, और इस तरह के इवेंट होने चाहिए डबलिन में और आयरलैंड में कि हमें पंजाबी कल्चर के बारे में पता चलता रहे। We came here, we really enjoyed. My sister-in-law, she especially came from Pakistan and she came here first time. She had enjoyed a lot and we expect more functions like this. It was a brilliant program. सरताज की आवाज़ काफ़ी हाई पिच वाली है और सबने यहाँ पे बहुत enjoy किया है इसको. And I really had a wonderful time. Yo, it's your boy Adi Saj. I'm here with none other than Mr. Rana Saab. We're here in the Scientology Center with none other than Satinder. He is absolutely killing the show today. We had a lot of fun. It was so loud and it gives people like us motivation. So we cannot wait to come back. पंजाबी नाइट हुई है। पहले तो GK एंटरटेनमेंट्स को मुबारकबाद, और जिस तरीके से इधर सारी कम्युनिटीज़ आई हुई हैं और हमारी पाकिस्तानी सिंगर ने भी इसमें परफॉर्म किया, ये बहुत खुशाइंद है। ਡਬਲਿਨ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। इस तरह के शो बहुत देर से लोग डबलिन में मिस कर रहे थे और जितना आज क्राउड हमने देखा है इस इवेंट में, इस पंजाबी कॉन्सर्ट में, पूरे वसूख से कह सकते हैं कि अब ये काम रुकने वाला नहीं है। कंसर्ट में खाने का बेहतरीन इंतजाम था, जबकि सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की खिदमत हासिल की गई थी। शायकीन में ज्यादातर खवातीन और फैमिली शामिल थी, जिन्होंने शो को बेहद एंजॉय किया। लंबे अरसे के बाद आज डबलिन ने एक बड़ा अच्छा पंजाबी शो देखा है। यहाँ पे दोनों तरफ के पंजाबियों ने यहाँ भंगड़ा भी डाला और खूब यहाँ का जो पंजाबी जो एक शो था उसे एंजॉय किया है। सतिंदर सरताज को पूरी पंजाबी कम्युनिटी इस चीज़ में मुबारकबाद पेश करती है और उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ होते रहेंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। तनख्वाहों के मामले पर स्कॉटलैंड में मुख्तलिफ महकमों के कारकुन हड़ताल करेंगे या नहीं, फैसला वोटिंग के जरिए होगा, जिसका इख्तिताम 26 जुलाई को होगा। कारकुनों ने हड़ताल का फैसला किया तो स्कूल, नर्सेस, वेस्ट और रिसाइकलिंग के मराकज बंद हो जाएंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इस वक्त स्कॉटलैंड के स्कूल्स, नर्सरीज, वेस्ट एंड रिसाइकलिंग मराकज में 25,000 से ज्यादा कारकुन काम करते हैं, जिन्हें हड़ताल की तरगीब दिलाई जाएगी। वर्कर्स यूनियंस का कहना है कि कारकुन हड़ताल के हक में वोट डालें, क्योंकि वजीर खजाना केट फॉब्स ने यूनियन की जानिब से बातचीत की आखिरी पेशकश को ठुकरा दिया है। हड़ताल से बचने के लिए यूनियन रहनुमाओं ने वजीर खजाना और फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्ट्रेजन से मुलाकात का मुतालिबा किया। अगर हड़ताल के हक में फैसला आया तो यूनियन अगस्त में समर ब्रेक के बाद हड़ताल शुरू करेगी, जब बच्चे वापस स्कूल ज्वाइन कर रहे होंगे, जबकि वेस्ट एंड रिसाइकलिंग का अमला कूड़ा करकट जमा करना बंद कर देगा, जिससे गलियों बाजारों में जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई देंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ऋषि सुनाक ने टैक्स पेयर्स के अरबों पाउंड ज़ाया कर दिए। नाक़दीन का कहना है कि वज़ीर ख़जाना ये रकम बचाने के लिए इक़दाम करने में नाकाम रहे और कर्जों के सूद की अदायगी के लिए रकम खर्च की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स और सोशल रिसर्च थिंक टैंक ने कहा है कि ये नुकसान वजारत खजाना की जानब से शरह सूद में इजाफे के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ करने के इक़दाम में नाकामी की वजह से हुआ, जिसकी वजह से 900 अरब पाउंड के ज़खायर पर ज़रूरत से ज़्यादा अदायगी करना पड़ी। बरतानवी वजारत खजाना के मुताबिक इस हवाले से इक़दाम करना बैंक ऑफ इंग्लैंड की जिम्मेदारी थी, जो कि वजारत खजाना के मतहत नहीं बल्कि एक आज़ाद अदारा है। उधर वजारत खजाना ने करार दिया है कि नाइसिल्स की जानब से दी गई तजावीज़ से खुद मुख्तारी में कमी आएगी, जो कि सरकारी खजाने के देख
भाल के हवाले से एतमाद के लिए तबाहकुन होगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 895 अरब पाउंड की रकम का बंदोबस्त किया था, जिसे पेंशन फंड और दीगर सरमाए से हुकूमती बॉन्ड्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इस रकम पर सरकारी शरह सूद पर सूद अदा करना पड़ गया, जिसकी वजह से वजीर खजाना को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में सीजन 2022 अपनी तमाम तर रंगीनियों और रंगारंग प्रोग्रामों के साथ कामयाबी से जारी है, जिसमें जद्दा जंगल शायकीन में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रहा है। सीजन में दुनिया भर से लाए गए खूबसूरत, नायाब और महंगे तरीन परिंदे रखे गए हैं। बच्चे और बड़े इन खूबसूरत परिंदों को देखकर बेहद खुश होते दिखाई देते हैं। जद्दा जंगल में परिंदों का बाकायदा एक सेक्शन कायम किया गया है, जहां पर दुनिया भर से लाए गए 200 से ज्यादा नायाब और महंगे तरीन परिंदे रखे गए हैं। इस सेक्शन में लोगों को परिंदों के दरमियान आजादाना घूमने और उनको पकड़ने की इजाजत भी हासिल है। यहाँ सैर तफरीह के लिए आने वाले बच्चे और बड़े ब्राजील और अमेजोन के मुख्तलिफ किस्म के तोते देख कर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इन कीमती परिंदों को अपने दरमियान पाकर बेहद खुश हुए। किसी ने इनको अपने बाजू पर बिठाया तो किसी ने चुटकी के इशारे से डांस करवाया, जबकि बच्चों ने तोतों से खूब बातें की और उनके साथ सेल्फीज भी बनाते रहे। जद्दा जंगल में दुनिया का महंगा तरीन माना जाने वाला पाम कोकातो नामी ऑस्ट्रेलवी परिंदा भी नुमाइश के लिए रखा गया, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये न सिर्फ परिंदों बल्कि जानवरों में भी सबसे महंगा है, जो कि नायाब और बड़ी मुश्किल से मिलता है। जबकि जद्दा जंगल में इस नस्ल के 3 किस्म के तोते लाए गए हैं। इसके गाल का रंग सुर्ख और इसका भड़कीला स्याह रंग बड़ा पुरकशिश है। 70 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा और वजन 1000 ग्राम है। कोकातो नामी तोते को 2019 में दुनिया के खूबसूरत तरीन परिंदे का अवार्ड मिल चुका है। दुनिया में इस नस्ल के चंद ही तोते मिलते हैं। जद्दा चिड़ियाघर में जोका कतवाल नखेल लाया गया है। इसकी उम्र 60 बरस से ज्यादा है। ये परिंदा 90 बरस तक की उम्र पाता है। इसे दुनिया भर के मुअम्मर तरीन परिंदों की नस्ल में भी शुमार किया जा रहा है। शायकीन इन परिंदों का तारुफ सुनकर खुशी महसूस करते रहे। अदील रियाज, नुमाइंदा 92 न्यूज, जद्दा, सऊदी अरब। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज यूके।